Hello friends, this is Akshay Kadam. Welcome to the platform of Darshanik IAS. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss one concept from virtue ethics theory advocated by Plato. So in your ethics syllabus, philosophy is a very important part. And in philosophy part, there is a topic called normative ethics. And under normative ethics, there are different branches of ethical reasoning. One branch is virtue ethics. Another is consequentialist ethics. Third is deontological ethics. Fourth is rights ethics. Now in virtue ethics, Sadgun, Naitikta. So in virtue ethics, there are different philosophers like Aristotle, Plato, Socrates, Stoic, Epicurean, Buddha, Mahavira, and many more are there. And now these philosophers advocated different kinds of virtues. So I'm going to discuss this Plato's philosophy, where Plato advocated 4 kinds of cardinal virtues. He gave the concept of cardinal virtues, and in which he advocated 4 cardinal virtues, that is wisdom, courage, justice, and temperance. Now when he advocated these 4 cardinal virtues, he also advocated concept of philosopher king. So what is this idea of philosopher king that is advocated by Plato, that we will try to discuss. So philosopher king by Plato. Plato को that time when Plato was giving his theory, he wanted to discuss one topic कि who can govern these city states better. जो एथेंस वगैरह के जो अभी सिटी स्टेट बने थे, स्टेबल सोसाइटीज बनी थी, स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहे थे, एंड इनमें हु कैन बी द गुड सिटी स्टेट का राजा. एंड उसमें ही गेव आइडिया ऑफ अ फिलोसोफर किंग, कि जो राजा जिसके पास सारा फिलोसॉफी का नॉलेज हो, फिलोसोफर किंग, दैट इज द बेस्ट टू रूल, बेस्ट टू गवर्न. एंड सो फिलोसोफर किंग आइडिया दैट प्लेटो एडवोकेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन में केस स्टडी में भी यूज कर सकते हो. दैट व्हाट काइंड ऑफ मिनिस्टर शुड बी, व्हाट काइंड ऑफ IAS IPS ऑफिसर शुड बी, देन दे शुड बी लाइक अ फिलोसोफर किंग. और यही रिलेटेड कंसेप्ट इंडियन फिलोसॉफी में भी दिया था चाणक्य ने, जिसको हम बोलते हैं राज ऋषि, कि राजा ऋषि जैसा हो, कि एक उसको सारा फिलोसॉफी का नॉलेज हो. तो एक राजा को भी फिलोसॉफी का नॉलेज है, एक राजा जो ऋषि जैसा है इज द बेस्ट टू गवर्न, बेस्ट टू रूल. तो ये जो लीडर्स है या किंग्स है, दे शुड बी द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द लॉ, लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द इथिक्स, लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द जस्टिस. सो इन शॉर्ट, प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग में कंसेप्ट था, दैट टेल मी योर बेस्ट मेरिट्स एंड आई विल चूज द नेक्स्ट किंग. सो फिर आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रांग, आई हैव गुड सोल, and finally then according to Plato, one who has good soul should be made the king, because he has a good soul, he has a reasoned mind, he has a conscience developed, सत विवेक बुद्धि is well developed, and ऐसे ही लोग who are full of wisdom will be able to govern good. Now why these people able to govern good and why they are best suited, that we will discuss in this concept of philosopher king. So Plato writes in Republic, his book, that until, क्या बोल रहा है वो, philosophers are kings or kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evils. तो उसका कहना है कि फर्स्ट, जब तक जो अनरेस्ट है सिटीज में, इमोरलिटी चल रही है, वायलेंस है, इविल चीजें जो हो रही है सोसाइटी में, सिटी स्टेट्स में, इनको अगर रोकना है वो तब तक नहीं होगा until philosophers are made kings और किंग्स, प्रिंसेस जो भी है होने वाले, दे एक्वायर द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी, द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी. सो फिलोसोफर किंग आइडिया अकॉर्डिंग टू विच बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच फिलोसोफर्स रूल. सो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी, जहां पे हर कोई राजा जो है इज लाइक अ फिलोसोफर. हर कोई बुद्धा जैसा राजा होना चाहिए, हर कोई महावीरा जैसा राजा होना चाहिए, और ऐसे ही लोग, हर राजा ऐसा हो, ऐसे लोग रूल करने लगे, then automatically in society there we won't need laws, rules, regulations. सद्गुणता से भरे, सद्गुण नैतिकता से भरे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लो, उनको IAS IPS बनाओ, उनको ब्यूरोक्रेसी में लो, देन ऐसे लोग हो. If everyone is like तुकाराम मुंडे, then we don't need laws, rules. If everyone is like खेमका, we don't need laws, rules, regulations. क्योंकि ये लोग हर सिचुएशन में, हर कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सही काम करेंगे. Every decision that they take will be backed by their wisdom, the knowledge of philosophy that they have. And so, in Plato's view, no individual or regime could control or rule Athens better than the philosopher king.
and no one can rule Athens better, no one can govern Athens better, okay, other than these philosophers. So this philosopher king, okay, is the best idea. Now why philosophers are best to rule, ये भी एक डिबेट या क्वेश्चन जनरेट होता है. सो मेजर रीजन कि फिलोसोफर को राजा बनाओ तो क्या फायदा होगा, तो पहले तो उसमें विजडम फुल्ली डेवलप्ड है और हर कोई डिसीजन वो लेगा सत विवेक बुद्धि से, विजडम से, विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन जस्टिस. ही विल डू जस्टिस टू एवरीवन, ही विल बी जस्ट टू एवरीवन. तो ये जो उसके सामने कोई क्रिमिनल आया ही विल पनिश, कोई इथिकल या विक्टिम आया ही विल गिव द जस्टिस. सो दे विल बी लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉ, ट्रूथ, इथिक्स, मोरालिटी. और इसलिए फिर प्लेटो का जो कहना था, ही हु डज नॉट डिजायर पावर इज फिट टू होल्ड इट. ओके, जिसको राजा बनने की इच्छा ही नहीं उसको राजा बनाओ, देन राजा बनने के बाद ही विल नेवर मिसयूज हिज पावर, ही विल बी द बेस्ट फिट टू रूल. तो ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लो, ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में लो, हु डोंट वांट टू होल्ड द पावर, जिनमें पावर मेंटेलिटी नहीं है, जिनमें सिर्फ सिविल सर्विस मेंटेलिटी है. तो एक सिविल सर्विस मेंटेलिटी या एक ये पावर मेंटेलिटी का ना होना, इसका जो एक एग्जांपल. सो व्हेन आई टीच गांधी, मेनी स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन क्लास आस्क मी कि why Gandhi chose Nehru instead of Patel to be the first prime minister. तो I asked them the same counter question, that means you agree कि गांधी के पास इतनी पावर थी that he can decide who will be the first PM of India. और अगर गांधी के पास इतनी पावर थी to decide who can be first PM of India, तो गांधी खुद बोलते I will be the first PM, I will be the first president. Okay, but Gandhi was never PM, never a president, not even MLA, MP or even a sarpanch. Power he never was interested in. He never held any political post, any legal post. Okay, so ये जो moral force होता है इन लोगों के पास, who don't desire power, ऐसे लोग, if you give them authority to rule, they are the best to govern. And that's why one who does not desire power is fit to hold it. वही सिर्फ सबसे अच्छा राजा बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा. सो फिर वाई फिलोसोफर आर बेस्ट टू रूल, फिलोसोफर्स ही अच्छे से राज क्यों कर पाएंगे. सो वन आर्ग्यूमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे डोंट डिजायर पावर, एंड सेकेंड दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉ, विजडम, जस्टिस. तो हर जो चीज वो करेंगे विल बी बाय लॉ, बेस्ड ऑन जस्टिस, विजडम. सो फिलोसोफर जो फिलोसोफर किंग होता है, जिसमें फिलोसॉफी का नॉलेज डेवलप हो चुका है. प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यू की बात की थी, विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस. तो इसमें जो विजडम की बात की थी प्लेटो ने, ओके, ये जो विजडम की आइडिया थी, ये विजडम इज द सेंट्रल पार्ट. कार्डिनल का भी कार्डिनल वर्च्यू है विजडम, कैरियोटर ऑफ ऑल वर्च्यूज. हर वर्च्यू का वो सारथी है, कैरियोटर, वो रथ का सारथी, वैसे हमारी लाइफ का सारथी है विजडम. एंड अगर ये जो फिलोसोफर किंग होते हैं, इनमें सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल जो वर्च्यू होता है वो होता है विजडम. और बिकॉज विजडम इज द कोर ऑफ देयर पर्सनैलिटी, कोर ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम, दे आर फिट टू रूल. बिकॉज हर डिसीजन जो वो लेंगे विल बी बैक्ड बाय विजडम. सो वन दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेल्थ, सेक्स और द प्लेजर्स ऑफ लाइफ. और फिर उसमें विजडम डोमिनेंट है ना, तो फिर वेल्थ, सेक्स, प्लेजर ऑफ लाइफ या पावर को मैनिपुलेट करना, इन चीजों में उसको कभी मोटिवेशन नहीं होगा, इससे उसको कभी प्लेजर ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा. एंड दैट्स व्हाई ऐसे लोग अगर राजा बन जाते हैं, दे विल नेवर अब्यूज देयर पावर, दे विल नॉट हार्म पीपल, दे विल नॉट एक्सप्लॉइट पीपल. तो ऐसे आईएएस आईपीएस हु आर लाइक फिलोसोफर किंग, एडमिनिस्ट्रेटर, देन दे विल नेवर मिसगवर्न. जहां पे लूफहोल भी है, स्टिल दे विल नॉट मिसयूज द पावर, दे विल नॉट ट्राई टू यूज देयर पावर टू डू करप्शन, एक्वायर वेल्थ, एक्वायर व्हाट डू यू कॉल दिस वेल्थ थ्रू इलीगल मीन्स. तो ये जो एक्सटर्नल प्लेजर्स है, एक्सट्रिंसिक चीजें जो है, उनको कभी मोटिवेट नहीं करेगी. उनको एक ही चीज मोटिवेट करेगी, अपने अंदर जो विजडम है, ज्ञान है, उसको और बढ़ाओ. हर चीज अपने लाइफ की विजडम के हिसाब से करो. एंड दैट्स व्हाई फिलोसोफर्स आर बेस्ट टू रूल. वन रीजन, बिकॉज वेल्थ, सेक्स, प्लेजर्स, इन चीजों से दे नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड. उनको एक ही चीज इन्फ्लुएंस करती है, अपने विजडम का यूज करके सर्च द ट्रुथ. ओके, ट्रुथ का सर्च करो. ओके, ट्राई टू फाइंड द अल्टीमेट जस्ट थिंग क्या है. हर किसी के साथ ट्रूथफुली बिहेव करो, हर किसी को जस्टिस दो. एंड नेचर ऑफ जस्ट लाइफ, दे ओनली एंजॉय लिविंग अ जस्ट लाइफ, मोरल लाइफ, इथिकल लाइफ. सो लाइफ दैट लाइक लॉर्ड रामा लिव्ड, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक बानी, एक पत्नी, एक वचनी. लाइफ दैट लॉर्ड कृष्णा लिव्ड, ओके, योग पुरुष,
So that kind of life, they only will be interested in living a life the way these people did. And that's why philosophers are both morally and intellectually suited. तो morally, why philosophers are morally best suited? Because उनमें wisdom is the core personality. They love the truth. They love learning. Okay, they are free from any greed, lust, okay, money, wealth. इन चीजों से वो totally free है और उनको सिर्फ wisdom and truth यही चीजें पसंद आती है. उनको सिर्फ justice पसंद आता है. And that's why they are morally well suited. And why they are intellectually well suited to rule? Because they alone can gain full knowledge of reality. और because they have the knowledge of philosophy, उनको reality का बहुत ज्ञान है. हर सोसाइटी का, बाकी हर चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी हो, इनका बहुत नॉलेज है उनके पास. ओके, एंड यूजिंग दैट नॉलेज, कैवल्य ज्ञान, द नॉलेज दे हैव, ओके, ऑटोमेटिकली प्लेटो बिलीव्स दैट रूलर्स will be able to govern good. So intellectually they have a lot of knowledge, and philosophically they have morally lot of virtues, values, good character, and both combination of this they will be able to govern in a just manner. और ऐसे ही लोगों को राजा बनाओ, then there we will be able to create a good society, और ऐसा राज बना पाएंगे where everything gets governed in a ethical moral manner. And that's why इसकी जो फिलोसोफर किंग की आइडिया थी, तो फिर ये जो फिलोसोफर किंग प्लेटो ने जो आइडिया दी थी, अगर इस एग्जाम्पल का या इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है, अगर इंडिया में कोई फिलोसोफर किंग पूरी दुनिया में अगर कोई एग्जाम्पल अगर यूज करते हैं, तो मेरे मन में जो पहला एग्जाम्पल आता है वॉज द लीजेंडरी शिवाजी महाराज. सो चाणक्य ने जो बोला था, राजा ऋषि जैसा हो, ऋषि और राजा जैसा हो, तो उसी तरह से ओके शिवाजी महाराज पे भी एक पोएम जो है, ओके, उसमें जो शिवाजी महाराज के लिए वर्ड यूज किया जाता है महाराष्ट्र में, दैट इज श्रीमान योगी. सो निश्चयाचा महामेरू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, बहुत जणांसी आधारू, श्रीमान योगी. सो श्रीमान, दैट इज जेंटलमैन हु इज लाइक योगी और योग पुरुष. सो दैट फिलोसोफर किंग आइडिया, ओके, इज द एग्जाम्पल दैट वी हैव इन इंडिया. अब नाउ व्हाई शिवाजी महाराज वी कॉल और आई कॉल हिम फिलोसोफर किंग? बिकॉज जो प्लेटो ने बोला था कि फिलोसोफर किंग जैसे लोग हैं, दे विल नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेल्थ, पावर, रिस्पेक्ट, कोई भी एक्सटर्नल चीजों से. ओके, उनको सिर्फ मोटिवेट करेगा टू डू गुड टू अदर्स. अब 2-3 हजार साल में इंडिया में इतने राजा महाराजा हो गए, ओके, बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी एम्पायर थी, वेल्थ थी, बहुत सारे पूरे इंडिया पे भी बहुत सारे साल उन्होंने राज किया. बट हाउ मेनी किंग्स आर देयर जिनकी घर घर में भी भगवान जैसी पूजा होती है? बट शिवाजी महाराज वॉज द ओनली किंग हु क्रिएटेड इन मेडिवल टाइम पीरियड में, अकेला ऐसा राजा था हु सेड कि उनके जो एम्पायर का पर्पज है वॉज टू क्रिएट स्वराज, द राज जो सबको लगे इट इज हिज किंगडम. एक स्वराज की एक सिंपल डेफिनेशन उन्होंने दी थी कि हर किसी को लगे ये मेरा राज्य है, स्वराज. दैट आइडिया फिलोसोफर किंग दैट ही एडवोकेटेड. और मीडिवल टाइम पीरियड में उन्होंने जो अपनी राजमुद्रा बनाई थी, उसका जो स्टेटमेंट था, पति पचंद्र लेखे वे वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहुष्णु शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते, उसका सिंपल उन्होंने कि मेरा जो स्वराज बनने वाला है उस एम्पायर का सिर्फ एक ही पर्पज होगा, जैसे ओके पूर्णिमा का चांद बढ़ता जाता है उसी तरह मेरे स्वराज में लोगों का कल्याण बढ़े. सो 2-3 हजार साल की इंडिया की हिस्ट्री में अकेला ऐसा राजा था जो बोल तो रहा था कि मेरे एम्पायर का एक ही पर्पज है, लोगों का कल्याण बढ़ाओ, यू वांट टू क्रिएट स्वराज. देन मिडिवल टाइम पीरियड में अकेला ऐसा राजा था जिसकी कोई मिस्ट्रेस नहीं थी, जिसके कोर्ट में कोई डांसिंग गर्ल नहीं थी. सो ये तो सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल है, ओके, व्हाई ही कम्स और इज अ लिविंग एग्जाम्पल दैट इंडिया हैड ऑफ अ कंसेप्ट दैट प्लेटो एडवोकेटेड, फिलोसोफर किंग, राज ऋषि, और व्हाट वी कॉल in Maharashtra what Shivaji Maharaj gets called as Shriman Yogi. So this is a philosopher king idea, a very short concept that you can use in many questions of ethics paper, even in case studies. You can use this idea. बहुत बार यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है या केस स्टडी में, that which 3 qualities do you think you have that will make you good civil servant. तो वहाँ पे इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये तो जनरल वैल्यूज मत लिखो, वहाँ पे यू कैन यूज दिस कंसेप्ट लाइक फिलोसोफर किंग, ओके, या एडमिनिस्ट्रेशन में भी यू कैन यूज दिस आइडिया. सो डू चेक आउट माई दार्शनिक IAS चैनल. मैंने और भी ऐसे फिलोसॉफिकल थॉट्स के रिकॉर्डिंग्स किए हैं. डू चेक देम, लाइक एंड सब्सक्राइब दोज वीडियोज. टू डाउनलोड दिस नोट्स, ज्वाइन मी ऑन UPSC Ethics for my Telegram channel.
and download my app Darshanik IAS by Kadam sir from Google Play App Store. Soon in a month or so I will be launching full course of ethics 100-120 hours ka and course of essay for UPSC and state services exam. So thanks for listening guys, and stay tuned for more lectures.